جو خدا نے مجھے آج کے لیے کلام بخشا ہے، آج وہ کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کلام میرے لیے، یہ کلام آپ سب کے لیے، یہ کلام ہم سب کے لیے۔ ہاللیلویا۔ آئیے مرکز کی انجیل اس کا 2 باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت، اس حوالے کو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کئی خادم دین سے سن چکے ہیں۔ آج خدا نے جو مجھے بخشا ہے میں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ Father Lord, I come to you. You are mighty, gracious, victorious God. Be my mouth, be my words, and deliver whatever you want to. خداوند میں نہ رہوں، مجھ میں تو ہی تو نظر آئے۔ تیرا کلام تیرے لوگوں میں خداوند آج ڈیلیور ہو جائے، یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، ہم یسوع المسیح کی زندگی سے بخوبی واقف ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تب بھی معجزات تھے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک بھی معجزات رہے، اس کے چلے جانے کے بعد بھی کیا ہوا؟ ابھی بھی معجزے ہی معجزے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے کن کے درمیان ہیں؟ آج اس بات پر ہم غور کریں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ جو خاص معجزہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ متی، مرکز اور لوکا، ان تینوں نے اسے بیان کیا ہے۔ یوحنا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرکز کے بارے میں، جانتے ہیں وہ کون تھا؟ کیا وہ یسوع کا شاگرد تھا؟ ہاں جی، وہ یسوع کا شاگرد نہیں تھا، لیکن اس نے مرکز کی کتاب لکھی، مرکز کی انجیل لکھی۔ وہ پترس کا شاگرد تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ میں ان سارے اپوسلز کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور جیسے ہی وہ ریسرچ پوری ہو جائے گی تو میں آپ کے سامنے اس کو لے کر آؤں گا، باری باری ایک ایک کے بارے میں بیان کروں گا کہ کون کیا تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، کب پیدا ہوا، کیسے مرا، اور اس نے کیا کیا۔ لیکن ان سب اپوسلز کی زندگی میں، ان سب شاگردوں کی زندگی میں، ان تمام ایونجلسٹ کی زندگی میں جو مرکز تھا وہ یسوع المسیح تھا۔ آمین۔ اور اس مرکزیت کی وجہ سے وہ جانے پہچانے بھی جاتے ہیں، کئی ہزار سال پہلے گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری گفتگو میں وہ ہماری گفتگو کا حصہ بنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یسوع مرکز ہے۔ آمین۔ اس پر جب میں غور کر رہا تھا، اور یہ جو معجزہ خاص طور پر کہاں ہوا تھا؟ کفرنہوم میں، انگلش میں کیپرنہوم جو ہے، اٹس بین ڈرائیوڈ فرام ہیبریو ورڈ، 2 لفظوں پہ یہ مشتمل ہے، کفار اینڈ نہوم۔ کفار جو ہے وہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ولیج، گاؤں، دیہات، اور نہوم کا مطلب کیا ہے؟ کمفرٹ، تسلی، اطمینان۔ تو اگر دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو تسلی کی جگہ، اطمینان کا شہر، اطمینان کا گاؤں، جہاں پر اطمینان ملتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یسوع المسیح کا دوسرا گھر جو ہے وہ کفرنہوم ہی تھا، جہاں سے اس نے 5 شاگرد لیے تھے، پیٹر، اینڈریو، جان، جیمز اینڈ میتھیو۔ اس معجزے کے فوراً بعد میتھیو کو جو ہے خداوند نے دعوت دی تھی، یسوع نے دعوت دی تھی کہ میرے پیچھے ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ اب کفرنہوم جو ہے، وہاں پر بڑے معجزات ہوئے، ایک ان میں سے یہ بھی ہے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو مفلوج ہے اس کو یسوع المسیح کے پاس لایا گیا ہے۔ مفلوج کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ پیرالائزڈ کی کیا ڈیفینیشن؟ ڈسکنٹینیویشن ان دی کوآرڈینیشن، کہ کوآرڈینیشن ختم ہو جائے، سٹروک کسی کو ہو جائے، کسی کو فالج ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کوآرڈینیشن ختم ہو جاتی ہے، دماغ کا
सेंसरी और मोटर सिस्टम के साथ जो है कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। मोस्टली हम में से जो है नर्सेस बैठे हुए हैं, मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। यहां से मैसेज जाएगा नहीं, मैसेज वहां से आएगा नहीं, मफलूज हो चुका है, हाथ पांव हिला नहीं सकता। ये तो था जिस्मानी तौर पे। आज हम में बहुत से लोग हैं जो जिस्मानी भी मफलूज हैं, जो ज़हनी तौर पे भी मफलूज हो चुके हैं और रूहानी तौर पे भी मफलूज हैं। राबता ही नहीं है, राबता खत्म हो चुका है खुदा के साथ। क्या हम ऐसे रहना चाहते हैं? क्यों होता है ऐसा? आइए जरा देखें, मेरे साथ निकालिएगा रोमियो पहला बाब और उसकी हम 21वीं आयत पर गौर करते हैं। वहां लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। ये है वजह डिसकंटिन्यूशन की खुदा के साथ हमारी रूहानी तौर पर मफलूजियत की वजह ये है। हमारा रूहानियत जो है वो फालिज के शिकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहचाना भी है, हमने उसे देखा भी है, हम उसे जानते भी हैं। हम ये भी समझते हैं कि हमें नेकी करने की जरूरत है, हम ये भी समझते हैं कि हमें खुदा की तरफ रागिब होने की जरूरत है, हम खुदा के साथ राबते में रहें। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी साढ़े रास्ते ही फर्क नहीं। तो क्या हुआ कि उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। तो जहां पर डार्कनेस है वहां कौन है? शैतान ही शैतान है। वहां पर शैतानी तासीरें काम करती हैं और वो जानने के बावजूद भी वो ना समझ है, नहीं समझ पा रहे। और जब हम ऐसा करते हैं तो 28वीं आयत में क्या लिखा है? और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा के अकल के हवाला कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। गैर लोग कहने असी मसीहियां ते हरकतां मसीही वालियां को नहीं। हम कहते हैं कि हमारे अंदर यीशु बसता है, हम कहते हैं कि हम यीशु के पैरोकार हैं। क्या यीशु का नमूना मेरी जिंदगी में मौजूद है? इतने अहकाम हमें कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा हमें मिलते हैं। हमें वो हुक्म मिलते हैं, लॉ मिलता है कि जिसके वसीला से हम अपनी जिंदगी को राहे रास्त पर लेकर चल सकते हैं। लेकिन हम तो नालायक हरकतों के हवाले हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम रूहानी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। उस मफलूजियत से बाहर आने के लिए, उस हालत से बाहर आने के लिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की तरफ रागिब हों, जिसे हमने जान भी लिया है, जिसे हम पहचानते भी हैं। तो क्यों ना हम उसकी वैसे ही तमजीद करें जैसे कि हमें करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो तब हम जो है हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की लाचारी, हर किस्म की मफलूज हमारी जिंदगी से, जो फालिज के अटैक्स होते हैं, वो हमारी जिंदगी से जाते रहेंगे। हम रूहानी तौर पर जिंदा हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में कोई शैतानी तासीर नहीं रहेगी। क्या हम अंधेरे के फर्जंद रहेंगे? कभी भी नहीं। क्योंकि जब हम उसे वो इज्जत देंगे जिसके वो लायक है, तो वो हमें नालायक हरकतों से निकाल कर बाहर ले आएगा। और हमें क्या बख्शा है उसने? हम तो शाही काहिनों का फिरका है। ते शाही काहिनों दे फिरके वाले इस तरह करते हैं जेड़े नालायक हरकतां कर नो। और हमें क्या करने की जरूरत है? हमें खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाने की जरूरत है, ताकि हम जो है उसको, अगर हमने जान लिया है, कभी खुदा ने मौका दिया तो इस पर बात करेंगे। दो अलग टॉपिक हैं, खुदा को जानना और खुदा के बारे में जानना, यीशु को जानना और यीशु के बारे में जानना। ये दो डिफरेंट चीजें हैं जिन्हें लोग मिक्सअप करके बयान करते हैं। फिर खुदा ने मौका दिया तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक सिंपल सी बात यह है कि अगर हमने यीशु को पहचान लिया, कौन है वो? कौन है वो? नजात दहिंदा, हमारे गुनाहों को उठाने वाला, हमारे बोझों को उठाने वाला, हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़े होने वाला, मोजजात से बढ़कर खुदा, वो खुदा जो कादिर है, जो नामुमकिनात को करने की कुदरत रखता है, वो हमारे साथ खड़ा है। तो फिर मुश्किल का दी है। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने लिए कुछ लायमल तैयार करने की जरूरत है ताकि हम मफलूज ना हो रूहानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर देखें, मुश्किल परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन खुदा का वादा यह है कि वो हमारे साथ खड़ा है। आमीन। आइए हम वापस अपने हवाले की तरफ चलते हैं। हमने फिर उसमें देखा, पहली बात कि ये मुआवजा जो है कफरनहूम में हुआ। दूसरी बात कि उसको वहां पर मफलूज को लाया गया है।
इस पूरे मुआवजे को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उस 3 कैटेगरीज के अंदर फिर सब कैटेगरीज हैं। 3 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 पॉजिटिव्स, नंबर 2 नेगेटिव्स, नंबर 3 उन सब पे हावी यीशु मसीह का इख्तियार। हालेलुया। पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या आता है हमें? हाँ जी, उनका फेथ। जी, 2 चीजें हैं इसके अंदर। मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव के अंदर फिर उसकी सब कैटेगरीज हैं। नंबर 1 जो है ट्रू कंपेनियनशिप, वो साथी जो उस मफलूज को चारपाई पर लाकर, इंग्लिश में मैट लिखा हुआ है, उस पर लाकर उसको जो है यीशु मसीह के पास ला रहे हैं। आज करते हैं हम ऐसा? हमारे साथ कोई रूहानी मफलूज हो, कहीं कहते हैं यार इन्हों छाड़ो पर ये रूहानी नहीं है। हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। क्या पॉजिटिविटी है इसके अंदर? ट्रू कंपेनियनशिप। हमें उस जो गुनाहों में धंसा हुआ शख्स है, वो लोग जो गुनाह की तरफ धंसे चले जाते हैं, हमें उनके साथ खड़े होकर यीशु की जो है वो क्या देनी है? तालीम देनी है। हमें उन्हें बताने की जरूरत है कि आप राह रास्त पर आ जाएं तो जिंदगी वो भी हमेशा की वो आपकी। हालेलुया। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो और वो मजीद धंसते चले जाएंगे, क्योंकि सोहबत जो है इंसान को बिगाड़ के रख देती है। फिर इसके साथ एक और खास बात हमें नजर आती है, वो क्या है कि हमारी शख्सियत जो है वो किसकी अक्कासी करती है? खुदावंद यीशु मसीह की, क्योंकि हम उसका नमूना अपने अंदर ले रहे हैं। हमारे अंदर जो अमाल है यीशु मसीह के दिए हुए, अगर वो हमें नजर आएंगे तो यीशु ने कितने छड़िया जो कोई मुश्किल जैसी उन छड़ के ना जाना सी, उनके साथ खड़ा रहे। कोई बीमारी से शिफा पाने के लिए आया है तो कभी उसको नहीं कहा चला जा, आज नहीं दे सकता। कभी कोई किसी मुश्किल में उसके पास आया है, कुछ सवाल लेकर आया है, उनके जवाबात देकर उन्हें वापस भेजा है ताकि वो अपनी उलझनों से बाहर आ जाएं। और यहां पर हम देखते हैं कि ट्रू कंपेनियनशिप जो वो 4 लोग हैं, वो मैं समझता हूं कि बड़े ही स्ट्रांग फेथ के लोग थे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो जो मफलूज था वो उसका ईमान कमजोर था। डिफरेंट ख्यालात हैं, हम लोग वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन ये लोगों के ख्यालात जो अब तक पहुंचते हैं। हो सकता है कि उसका भी ईमान हो, वो कहता हो कि मैनू लै चलो, हो सकता है मैं उत्थे जाके शिफा पा लूँ। खाम ख्यालियां हैं, क्या सराइयां हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो उसमें बात सीखने की बात है ना, चीज़ें जो उलझन की जरूरत नहीं है कि वो क्या करते थे, क्या कहा था, क्या हुआ था, लेकिन जो इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो हमें लेने की जरूरत है। ये 4 शख्स, मैं 2 हफ्ते पहले इंग्लिश चर्च के अंदर इस चीज को प्रीच कर रहा था और वहां पर भी मैं इनको वही बता रहा था कि वो 4 शख्स, उन्हें आप कंपेनियंस भी कह सकते हैं, एक अच्छा दोस्त भी कह सकते हैं, और ऐसा शख्स भी कह सकते हैं जो कि नेक सामरी की तरह, गुड समैरिटन की तरह हर वक्त जो है अच्छाई के लिए खड़े हैं। और अच्छाई क्या थी? वो चाहते थे कि ये शख्स शिफा पा जाए, ये मफलूज जो है वो शिफा पा जाए। क्या ऐसी खास बात थी जो इस पॉजिटिव में, जो सेकंड पॉइंट है, जो उन्हें यीशु मसीह के पास इस मफलूज को लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं? क्या खास बात थी? और वो था पॉजिटिव, उनका फेथ, उनका ईमान। ईमान की डेफिनेशन क्या है? इब्रानियों 11 बाब पहली आयत। उन्होंने देखा था कि ये शिफा पा रहा है, वो तो उसी मैट पर, उसी चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी इस ईमान के साथ कि ये इस चारपाई से उठ जाएगा। और ये था ईमान उनके अंदर। और ईमान आता कहां से है? रोमियो 10 बाब 17 आयत, सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम को सुनते हैं,
جب ہم اس کی باتوں کو سنتے ہیں, جب ہم گواہیوں کو سنتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کیا کر سکتا ہے, جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کی شخصیت ہے کیا, جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں لاسانیت ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت اور کوئی ایسی شخصیت ہمیں بخشی نہیں گئی, ایسا نام ہمیں بخشا نہیں گیا جس کا نام کیا ہے, عجیب, مشیر, خدا قادر, عطیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ, ہاللویہ, وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ, جو خداوندوں کا خدا ہے. کسی اور بادشاہ کے لیے کہا گیا ہے نہیں, ایک وہی شخصیت, وہی نام ہمیں بخشا گیا ہے جس کے اندر الوہیت پائی جاتی ہے. ہاللویہ, وہ نام جو قادر نام ہے, وہ نام جو ناممکنات کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ نام وہاں موجود تھا. اور اسی نام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہیں سے سنا تو ہوگا ان چاروں نے کہ یار بندہ شفا دیتا ہے, کلام سناندا ہے. سن سن کے ان کی زندگی میں ایمان. They were strong in faith, I would say. Were they? They were strong in faith. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو, they were listening to the word of God. وہ خدا کے کلام پر دھیان لگا رہے تھے, اور اسی کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں ایمان پیدا ہوا, اور اسی ایمان میں انہوں نے چاروں نے اٹھایا مفلوج کو اور یسوع کے پاس لیے جاتے ہیں. پازیٹیوٹی کے ساتھ آئے ہیں, کہ نیگیٹیوٹی آ گئی. ہاں جی, کیا نیگیٹیوٹی تھی؟ سب سے پہلی نیگیٹیوٹی جو سب کیٹیگری ہے اس کی, نمبر 1, کہ وہ پیرالائز پرسن جو ہے could not walk. He could not make his way towards Jesus. He was paralyzed. Couldn't even walk, couldn't even move his legs, or I would say arms. But what happened? He was faithful. His friends or those men were faithful. They were strong in faith. وہ ایمان میں مضبوط تھے, اور اسی ایمان کے وسیلہ سے وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چل نہیں سکتا, کوئی نہیں گالے میں چکو دلا چلی ہے. اکثر و بیشتر ہم وہ گیت گاتے ہیں, منجی تے آمن والے پیری ٹور کے جامن گے. ہاللویہ, کیا ہی خوبصورت. وہ سسٹر تہمینہ نے میرے خیال گایا اس گیت کو, اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے, ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے. میٹ کے اوپر, اس چارپائی کے اوپر اسے اٹھائے ہوئے کہہ سکتے سن, یار ساڈے کندھے تھک گئے نے, کسی اور بندے نوں پھڑو. آج اسی بہت چھیتی تھک جانے تھوڑا جہا تر کے, ایکسرسائز نہیں کرتے. میں عام ایکسرسائز, فزیکل ایکسرسائز کی بات نہیں کر رہا, میں روحانیت میں, اسپرچول ایکسرسائز کی بات کر رہا ہوں. وہ مشق جو ہمیں روحانیت میں کرنی چاہیے, جس میں ہمارا دعا میں رکنا, جس میں ہمارا روزے میں رکنا, جس میں ہمارا تعلق خدا کے ساتھ رہنا, جس میں ہم خدا کو بتاتے ہیں, خدا سے ہم باتیں کرتے ہیں, اور اپنا آپ اس کے سامنے حلیمی اور عاجزی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں, تیرا ہی رہوں گا, مینوں استعمال کر. آمین. پہلی نیگیٹو یا ہرڈل یا بیریئر کیا تھا کہ that paralytic person could not walk at that point. لیکن وہ رکا نہیں وہاں پر, اس کے دوست, اس کے ساتھی, اس کے کمپینین وہاں رکے نہیں, انہوں نے پھر بھی اسے اٹھایا اور چل دیے. اس کے بعد آگے بڑھے, دیکھا یسوع مسیح گھر کے اندر موجود ہے, چاروں طرف لوگ موجود ہیں, جگہ نہیں ہے, کیسے اس چارپائی پہ پڑے ہوئے شخص کو جو ہے یسوع کے پاس پہنچایا جائے. That was the point. They got creative. Am I right? کیا کریٹیوٹی انہوں نے کی تھی وہاں پر, انہوں نے چھت کھول دیا. ہاں جی, اتنا ہجوم, اتنے لوگ موجود تھے, اس کے باوجود انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. Did they give up? No. Still keep on going so they can put this man in front of Jesus Christ, so that Jesus Christ can heal him, he can forgive him, he can ask him to leave this mat and stand up and walk on your feet. Hallelujah. یہ تھا ایمان ان کا. نظر آ رہا تھا ان کو, وہ تو بندہ تھے, حالے بھی چارپائی تھی, لیکن وہ اس ایمان میں اسٹرانگ تھے کہ آج ہم اس کو لے جائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. اس میں ایک اور خاص میسج
never ever give up. ہمیں کبھی بھی جو ہے ہمت نہیں ہارنی. اور جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں تو ہم ایمان ہار جاتے ہیں. ہاں جی. اور کلام مقدس کی بڑی خاص بات ہے کہ معجزے کن کے درمیان ہوں گے؟ ایمان رکھنے والوں کے درمیان, ایمانداروں کے درمیان. تو وہ اسی ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آئے ہیں, اسی ایمان کے ساتھ وہ مفلوج کو اس کے پاس لے کر آئے ہیں کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھی جو ہے, یہ جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا اسے کسی بھی طرح جانتے ہیں, یہ آج مکمل طور پر شفا پا کر یہاں سے چلا جائے. اب جب انہیں رستہ نہیں ملا, چاروں طرف ہجوم ہے. آج ہمارے چوگیر بھی بہت سا ہجوم ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہمیں یسوع کی طرف بڑھنے نہیں دیتے. رک جانا چاہیے؟ No. ہمیں کریٹیوٹی اپنی زندگی میں رکھنی ہے, اور وہ کون دیتا ہے؟ روحانی طور پر جب ہم خدا کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں تو خدا رستے خود مہیا کرتا ہے. خدا رستے مہیا کرتا ہے, خدا لوگ مہیا کرتا ہے, خدا وسائل پیدا کرتا ہے, خدا لوگوں کو کھڑا کرتا ہے تاکہ خدا کا کام کہیں بھی رکے نہ, بلکہ ہر لمحہ, ہر وقت, ہر جگہ اسی کا نام جلال پائے. آمین. اور اسی کریٹیوٹی کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے ہجوم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. آج ہمیں بھی روحانی طور پر ہجوم کو پیچھے چھوڑ دینے کی ضرورت ہے, اور ہم خداوند کے حضور میں آگے بڑھیں, اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ ہمیں جگہ کیسے ملے گی, ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ فلانے لوگ کی گلاں کر دینے. نو پرابلم ایٹ آل. ڈونٹ لک ایٹ them. Just keep your eyes on Jesus Christ and He will provide, He will give you the way to walk on. Amen. Amen. Praise God. اور یہی بات تھی کہ اس ایمان کے وسیلہ سے انہوں نے جا کے گھر دے مالک نے پوچھا ایسی چھت کھولنے لگے ہیں. آج کوئی ہماری اجازت کے بغیر چھت کھول دے, اہی تو گل پہ جائیں گے. وہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت محظوظ ہو رہا ہوگا یسوع مسیح کی تعلیم سے. وہ خود بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو سن رہا ہوگا. وہاں پہ کتنے لوگ آئے ہوں گے, اتنے لوگ. وہاں پہ ٹیچرز آف لا موجود تھے, وہاں فقی فریسی موجود تھے, وہاں پر اور بہت سارے لوگ شفا لینے کے لیے آئے تھے. کسی کو شفا نہیں ملی ہوتے. شفا پائی تو اس نے جو ایمان کے ساتھ آیا تھا. ہاللیلویا. اور جب وہ یسوع مسیح کے پاس نیچے اتار دیا گیا تو کیا ہوا؟ یسوع نے اسے کیا کہا؟ تیرے گناہ, سب سے پہلا کام تیرے گناہ معاف ہوئے. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اگر اس فالج کی بیماری میں یا مفلوج تھا تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تھا. ضروری نہیں کہ ہر بیماری وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے. ہم اس 38 سال کے اس سے بھی واقف ہیں جو وہ پول کے پاس مفلوج پڑا رہتا تھا, لیکن اس کے پاس کوئی ہیلپ نہیں تھی کہ وہ اتر سکے. لیکن کیا ہوا کہ یسوع وہاں بھی گیا, باقی کسی اور نو شفا نہیں دیتی, صرف انہوں شفا دے کے آ گیا. ہاں جی. تو میرا کہنے کا مقصد ہے میرے عزیزوں, جو ایمان پر کھڑے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں وہ کام ہوں گے جو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے, جو کبھی انہوں نے اس کا خیال بھی نہ کیا ہو, بلکہ اگر ان کی زندگیوں میں یا ان کے خیالات میں, ان کی سوچوں میں, ان کے ارادوں میں ایسا لگتا ہو کہ یہ ناممکن ہے, تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایمان پہ کھڑے ہو جائیں تو خداوند آپ کے ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور وہ آپ کی زندگی میں ایسے چلے گا پھرے گا جیسے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. وہ وعدہ جو اس کا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہیں روح القدس بھیجتا ہوں, تمہارا مددگار آئے گا, اور خدا جو ہے روح القدس کے وسیلہ سے, مددگار کے وسیلہ سے ہمیشہ اپنی حضوری اور معموری کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ چلتا پھرتا رہتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کام وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے. آمین. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان پر کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ, جو تیسری کیٹیگری ہے, وہ تھی اتھارٹی کی, اختیار کی. کون سا اختیار یہاں شو کیا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تیرے گناہ نال ہی دوسرے ایک دم ہی بول پہ اے کفر بکدا ہے. ہاں جی. یہ
इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्लास्फेमी। हाँ जी, कि वो बात करता है जो खुदा की जात के खिलाफ है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे, मैं समझता हूं कि वो बेबहरा थे इस चीज से, कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है कौन? यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत। आइए जरा उस पे हम गौर करें थोड़ा सा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। आमीन। आमीन। क्या था? वही कलाम खुदा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और अगर थोड़ा सा 14वीं आयत पे चलें तो फिर उत्ते सानू पता चल जाता कलाम है कौन सी। कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। कौन था वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। कहां से निकला है ये? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम था और कलाम जो है वो फिर क्या हो गया? तो कहां से निकला ये? खुदा से। वो कहते थे खुदा नू सिर्फ जड़ा ना गुनाह माफ करन दा हक के और कोई नहीं कर सकता। वो इस चीज से बहरा थे कि यीशु अल मसीह ही वो शख्सियत है जो कलाम से निकलकर मुजस्सम होकर इस दुनिया में आई ताकि हमें अपना फजल और इत्मीनान हमें दे और सच्चाई से हमें मामूर करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं समझता हूं कि उस वक्त पढ़ते तो बहुत कुछ सनो कलाम, जो कुछ उनके पास किताबें थी वो सब कुछ पढ़ते थे क्योंकि वो टीचर्स थे लॉ के। लेकिन पढ़ के भी कोई फायदा नहीं क्योंकि उनके ऊपर से गुजर जाता था। जब तक खुदा हमारी अकल ना खोल दे, जब तक खुदा हमें अपना फहम, अपना विजडम, अपना जो है वो फहम हमें अता ना करे, उस वक्त तक हम कुछ भी पढ़ के भी हम कुछ जान नहीं सकते। तो हमें खुदा से मांगने की जरूरत है कि खुदावंद हमें बख्श ताकि हम तेरी उस अकल को अपनी जिंदगी में रखें जो तू बख्श सकता है। और यहां पर इस बात का जो है हमें जो है सबूत मिलता है कि जिस शख्स ने जो गुनाह मुआफ किए थे वो खुद बजाते खुद जो है वो क्या था? खुदा था। जो उनका सवाल था कि खुदा जो है सिर्फ वही गुनाह मुआफ कर सकता है, और यीशु मसीह ने इस बात को उन पर जाहिर कर दिया कि मैं खुदा ही हूं, मैं उसी में से निकल कर आया हूं। इब्तिदा में हम देखते हैं कि क्या हुआ? कलाम रोशनी हो जा, कलाम था ना, बोलने से हुआ। यहां कुछ हाथ ना बढ़ाया उठे, सिर्फ मुंह से बोलने से जो है कलाम करने से रोशनी हो गई। रोशनी और अंधेरा अलहदा हो गए बोलने से। तो यहां यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो भी तो बोल ही रहा है, जा तेरे गुनाह माफ हुए। क्यों? क्योंकि वो ये वही खुदा है जो उस कलाम में से निकलकर मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया ताकि हमें इस बात का एहसास दिलाए कि हम अब गुलाम नहीं रहे, हम आजाद हो चुके हैं, हम फर्जंद बन गए हैं, हम लेप पालक हैं। हमारा जो है वो क्या हुआ है? उसने फिदिया दे दिया है, उसने हमारी कीमत अदा कर दी है खून बहाकर। दूसरी बात, दूसरी अथॉरिटी क्या थी? कि आसान क्या है मफलूज से ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, और ये कि उठ अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर दो चीजें यहां पर हुई हैं, एक फॉरगिवनेस मुआफी और दूसरा शिफा हीलिंग। और हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह इन दोनों कामों में कादिर है। वो मुआफ भी करता है और वो शिफा भी देता है, जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसे वो अदा करता है। हालेलुया। क्या हुआ उसके बाद? उसने क्या किया? चारपाई तो लम्बे प्यारे उठा ली और उठा और उसने चारपाई उठाई और चलता फिरता उनके सामने, जहां हजूम जगह नहीं दे रहा था उसी हजूम में से गुजर कर जो है वो बाहर निकल जाता है। ये हजूम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो लोग रूहानियत में नहीं है वो हजूम ही है। जो रूहानियत में खड़े हो जाते हैं वो ईमानदारों की सूरत में खड़े हो जाते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। और हमें अगर ईमानदारों की लिस्ट में आना चाहते हैं या हम समझते हैं कि हमें आना चाहिए, तो मेरे अजीजों में आज आपको दावत आम देता हूं और कहता हूं कि अपने ईमान पे खड़े हो जाइए और फिर देखिए कि जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम होते हैं। और खुदावंद आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। हमारी डेट्स को वो जो है क्या करेगा, मुकम्मल तौर पर हमसे जुदा कर देगा। हमारे अंदर ऊपर चढ़े हुए कर्जे जो है वो हमें मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। हमारे अंदर की बीमारियां जो हमें नजर आती हैं या नहीं नजर आती, चाहे वो गायबाना है चाहे वो जाहिरन हमें नजर आती हैं, वो मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाएंगी। हमारी जिंदगियों की मुश्किलें मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी अगर हम ईमान पर खड़े होकर ट्रू कंपेनियनशिप लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ, बल्कि हमारे वसीला से बहुत सारी और जिंदगियां जो हैं वो इस गुनाह की जिंदगी से बाहर आकर शिफा की जिंदगी में, मुकम्मल शिफा की जिंदगी में रहकर जिंदगी गुजारेंगे और उस निजात देने वाले यस्सु को तकते रहेंगे। उसके लिए हमें खड़े होने की जरूरत है। हमें अपने ईमान में पुख्ता तौर पर खड़े होने की जरूरत है। और यही बात यहां पर हमें नजर आती है कि हमारा खुदा जो शिफा भी दे सकता है, जो नामुमकिनात का खुदा भी है, जो मोजज़ात का खुदा भी है, हमारा खुदा जो सारे कामों को करने की कुदरत रखता है, हमारा खुदा जो हर काम में कादिर है, हमारा खुदा जो हमें हिम्मत ताकत तकवीयत बख्शता है कि हम खड़े हों और उसके नाम को जलाल दें। तो क्यों ना हम उसके नाम के लिए अपने आप को उसके ताबिया करके, फर्माबरदारी की रूह में आकर, अपने आप को सरेंडर करके, अपने आप को उसके सामने लाकर उसके हुजूर में कहें कि मैं तेरे हुजूर में हूं, मुझे इस्तेमाल कर। मैं उस मफलूज की तरह अपनी जिंदगी के अंदर से हर वो फालिज के अटैक, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो ज़हनी है, चाहे वो रूहानी है, मैं उनको मिलिया मेट करके बढ़ना चाहता हूं और मैं तेरी हजूरी में, तेरी मामूरी में बढ़ना चाहता हूं। मेरे रूहानी दर्जे ऊपर हो, मेरे स्पिरिचुअल लेवल्स डे बाय डे, आई वांट टू सी देम अप अप एंड अप एवरी डे। और वो वैसे ही होगा जब मैं अपने आप को पाकीज़गी के साथ और मुकम्मल रूह और सच्चाई के साथ, मैं आखा कि मैं दुनियादारी दे काम भी करता रहा तो मैं यसू नूं भी राजी रखा, तो साड़ी गलत फहमी है। अगर हमें खुदा को राजी करना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि हम एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर हमें एक मालिक की खिदमत करनी है तो हमें उन चार इश्खास की तरह अपने आप को मुकम्मल तौर पर ईमान में स्ट्रॉन्ग खड़े करके हमें उसकी तरफ राग़िब होने की जरूरत है। हमारी perseverance will lead us towards the righteousness. If we are persistent in our life, my dear friends, my colleagues, whatever we are, मेरी कलीसिया, ईमानदारों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मुस्तकिल मिजाजी हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। वो है रूहानी मुस्तकिल मिजाजी। आमीन। और आखिरी बात करके से ख़त्म करूँगा। मेरे अजीज़ों, हमें हर रोज़, हर लम्हा, हर वक्त ध्यान किस पे रखना है? यीशु मसीह पे। किस पे ध्यान था इनका? यीशु मसीह। क्योंकि सुना था उन्होंने कि यीशु मौजूद है घर के अंदर। किसी और नुवे के नहीं सुना है, सिर्फ उनका फोकस था। We have to be focused and persistent. Praise God. And that action will lead us towards the eternal life. May God bless you all. और खुदावंद आज के जिंदा कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों में वो गहरे काम करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं और सबसे बढ़कर जिसके लिए खुदावंद ने हमें पैदा किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।